Welcome back. This is Viewpoint. You're watching it with me, Griha. Now, as cyclone Biparjoy progresses, it is set to make landfall near Jakku in Gujarat on June 15th. There is a high alert that's been sounded in Mumbai as well. The Gujarat government has now said that more than 20,000 people from affected districts have been evacuated so far. Multiple NDRF teams have also been deployed and pre-positioned. Control rooms have also been set up for 24/7 operations, and Home Minister Amit Shah has said that the government is fully prepared to tackle the calamity. विगत 9 वर्षों में यह क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्यों ने मिलकर काफी उपलब्धियां प्राप्त की है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मगर हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपदाओं ने अपना स्वरूप भी बदला है, आपदाओं की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है और आपदाओं की तीव्रता भी बढ़ी है। तो हमने हमारी तैयारियों को इसके साथ ज्यादा पैनी करनी पड़ेगी और ज्यादा व्यापक भी करनी पड़ेगी। कई जगह पे अलग अलग प्रकार की नए क्षेत्रों में भी आपदा का अनुभव आ रहा है, बाढ़ के नए क्षेत्र उभरते जा रहे हैं। कई नए स्थानों पर भी गर्मी की लू के थपेड़े सहन करने पड़ रहे हैं और इस सब के लिए हमने देश से नाते अपने आप को तैयार करने पड़ेगा। A wind speed of almost 50 to 60 kilometers per hour, light drizzle. We are in Jamnagar, which is just adjoining Dwarka, which is one of the worst affected areas, expected to be hit due to the cyclone, which will make a landfall on 15th of evening. Now, remember, today heavy to very heavy rainfall was experienced in several low-lying areas of Gujarat, leading to evacuation of almost 20,000 people. SDRF, NDRF were all pressed into service. In fact, 17 teams of NDRF helped into the rescue operation. As of now, several districts of Gujarat are on an orange alert, and as we speak, massive operations are being put in place by the Coast Guard, by the Navy as well, in order to keep tabs on the situation. As of now, fisher folks have been advised to stay away from waters. Everyone has been advised to stay away from the seashores, because winds have been flowing in gusty speeds. Also, the air operations have been affected in several parts. Air India has already announced cancellation of several flights. Several other flights have also been affected due to the continuous, incessant, heavy winds that we have been experiencing. Railways have announced, either cancellation of several trains or postponement of them. So as of now, several measures are being put in place, even as it is expected that the wind speed will only rise tomorrow and day after tomorrow. It's expected to cross over 135 kilometers per hour. Along with heavy to very heavy rainfall in several locations on the coastline of Gujarat. As of now, the situation in Jamnagar, where we are around 50 to 60 kilometers away from Dwarka, which is going to be in the line of the cyclone when it makes the landfall, the situation here also seems to have been affected. We have been experiencing some heavy gusty winds along with a drizzle at several locations. बेहद तेज हवाएं अभी चल रही है और बारिश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और मैं बता दूं, यहाँ पर मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर जो फोरकास्ट के मुताबिक यहीं से यानी जखौ से यह साइक्लोन गुजरने वाला है और इसका असर यहाँ से देखना शुरू हो चुका है। यहाँ पर तेज हवाएं चलने लगी और ये जो आप इलाका देख रहे हैं पूरा खाली करा दिया गया है। दरअसल ये जखौ पोर्ट के बाहर की तस्वीरें, जहाँ पर मछुआरे रहते हैं, पूरा एक गाँव है, पूरे गाँव को खाली करा दिया गया, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है। तेज हवाएं चल रही है, पेड़ों की शाखों को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि किस हद तक तेज हवाएं वहां पर चल रही है और बारिश भी यहां पर हो रही है और 135 किलोमीटर
यानी 15 तारीख की वो सुबह का समय बताया जा रहा है जब यहीं से जखौ से वो साइक्लोन यहाँ से गुजरेगा और उस समय उसकी रफ्तार है वो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। चाहे शिप हो अपने कोस्ट गार्ड के, चाहे एयरक्राफ्ट हो हमारे एयरफोर्स के, उनको सुरक्षित जगहों पर फिलहाल अभी ले जाया जा रहा है। और अभी स्थिति थोड़ा आसमान में दिखाऊंगा तो उससे अंदाजा लगेगा किस तरीके से काले बादल और इस तरीके से पूरा असर देखने को मिल रहा है। हम लोग पोरबंदर में है। पोरबंदर में बदला हुआ मिजाज आपको दिखाते हैं कि मौसम का मिजाज बदल गया है और जो समुद्र में बिपरजॉय तूफान आ रहा है उसके कारण जो तटीय इलाका है वहाँ अलर्ट दे दिया है। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होने वाला है वो एरिया है पोरबंदर, द्वारका और कच्छ, जो तीनों इलाका है जहाँ ज़्यादातर इफेक्ट होने वाली है। तो रेलवे ने भी यहाँ तैयारी प्रशासन ने की है कि जो आने जाने वाली ट्रेनें हैं सौराष्ट्र के खास करके कोस्टल एरिया में वो सारी ट्रेनें रद्द कर दी है। हमारे साथ है पोरबंदर से रेलवे के ऑफिसर। सर ये बताइए कि अभी बदला हुआ मिजाज और आपकी क्या तैयारी? जिस तरह से अभी जो हालात खड़े हुए हैं तूफान की वजह से, तो उसके तैयारी के रूप से पोरबंदर स्टेशन के सभी उच्च अधिकारियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रेलवे के हेल्पलाइन नंबर भी तैयार किए, हेल्प डेस्क भी तैयार कर ली है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ से कई सारी ट्रेनें बहुत सी चलती है, तो उन सबको इस तूफान की परिस्थिति की वजह से कैंसिल कर दी गई है। तो उनकी जो कैंसिल उसके कारण अगर यात्रियों को कोई असुविधा हो रही है तो वो असुविधा न हो उसके लिए रेलवे ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जैसे कि अगर किसी को खाने पीने की व्यवस्था, तो उसके लिए भी व्यवस्था है हमारे लिए। फूड पैकेज तैयार है, पानी की बोतलें, फूड पैकेज सब तैयार है। अगर कहीं भी अगर गाड़ी फंस जाती है तो यात्रियों को अपनी निर्धारित जगह पर पहुँचाने के लिए एसटी, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, उन सभी की पूरी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। बिपरजॉय साइक्लोन को लेके हर तरह की तैयारियां की जा रही है, खास करके कच्छ के मांडवी जहां पे न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे खड़ी है। ये समुद्र है जिसके अंदर आपको फिलहाल करंट दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं कच्छ का जो मांडवी और जखोई है वहां पे ये जो साइक्लोन है बिपरजॉय वो 15 तारीख के आसपास आने वाला है, लेकिन उसके पहले मतलब आज 13 तारीख को ही पूरी असर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं बरसात जो है वो पूरी तरह से हावी हो चुके हैं और जीरो विजिबिलिटी, मतलब कि जो पूरा कच्छ इलाका है वो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी की तरफ दिख रहा है। सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है, आसपास का इलाका खाली किया जा रहा है। खास करके इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि 0 से 5 किलोमीटर के रेंज में मतलब कि जो रहने वाला इलाका है उस सारे इलाकों को खाली किया जा रहा है, क्योंकि उससे असर हो सकता है। खास करके जो कच्चे मकान हैं या झुपड़पट्टी में लोग आसपास रहते हैं उन सभी को खाली किया जा रहा है। ये बीच बिल्कुल बंद कर दिया गया है और समुद्र में आप करंट भी देख सकते हैं किस तरह से कच्छ के मांडवी का ये समुद्र है जहाँ पे करंट देखने मिल रहा है। यहाँ पे जो हवामान का बहुत काफ़ी समय से सुनाई दे रहा है कि हवामान आने वाला है, इसलिए सब फिशरमैन सबकी बोटें बंद कर दिए और सब जगह पे सेव कर दिए। यहाँ पे तो मछुआरे की बोटें 4 साढ़े 4 हज़ार के करीबन है और यहाँ पे बहुत परेशानी होती है लोगों को फिशिंग के बंद होने के कारण। अभी स्थिति ऐसी है कि अभी 15 तारीख को तूफान का आगाही बता रहा है, मगर फिर भी स्कूल में सेव किया जा रहा है और फिशिंग सब वगैरह बंद है। तो खाना बना सब इधर स्कूल में दे जा रहा है। अभी ठीक है सबको। नुकसान तो बहुत हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, पर मगर अभी 2-3 महीने के लिए स्टॉप किया जा रहा है सीजन को। As the effect of the cyclone Biparjoy can be experienced around Gujarat coast here in Mumbai, considering that the cyclone has moved towards up northeast, what's in fact being seen is that the sea is quite turbulent even until now. There are heavy waves that can be seen. Even in fact, Mumbai is experiencing pre-monsoon showers currently. If you can see right here at Marine Drives, the entire coast has been evacuated. There is a regular patrolling that's being done by cops in this case. And apart from that, what really is seen is that along other areas, along other coastal areas of Maharashtra, like Palghar and other regions, there has been clear indication that from 13th to 15th onwards, there should be no one who should be seen around the coast. This is in order to ensure that any kind of an effect of cyclone Biparjoy can be brought to minimum. कितने असेट्स आप लोगों ने अभी तक डिप्लॉय किए हैं इस पूरे पाथ में? जी,
हमने इस वक्त गुजरात में हमारे 2 बड़े जहाज हैं और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एंड ALH हमारा ऑपरेशन कर रहा है, जो कि प्रिवेंटिव एक्शन ले रहा है इस साइक्लोन के पहुंचने से पहले। महाराष्ट्र में हमारे 5 बड़े जहाज, जो कि इस वक्त हमारे समुद्र की वो स्थिति है वो थोड़ी खराब है, तो बड़े वाले जहाज हमारे उसको सस्टेन कर सकते हैं। ऑल रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड रेस्क्यू मिशन के लिए जितनी भी चीजें चाहिए हमको, उसके साथ वो लोग महाराष्ट्र कोस्ट पे इस वक्त है। जैसे अगर साइक्लोन जहां पर भी इफेक्ट करेगा, जहां क्रॉस कर जाएगा और वहां मदद की जरूरत होगी, ये जहाज तैयार हैं। इस बार जैसे कि हमारी फिशिंग बैन है इस वक्त वेस्ट कोस्ट में, तो बड़े वाले मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स जो हैं वो इस वक्त समुद्र में नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्री बोट्स हमारी समुद्र में हैं। फिर हमारे हेलीकॉप्टर्स ने, डॉर्नियर्स ने और जहाजों ने उनको मैसेज पास किया VHF पे, लाउड हेलर पे, उनको आगाह करके शेपर्ड करके अंदर पोर्ट में लेके आ गए हैं। हमारा मिनट टू मिनट जो हम अपडेट है, हम अपनी तरफ से स्टेट अथॉरिटीज को और सेंट्रल अथॉरिटीज को दे रहे हैं, और वहां से जो भी इनपुट है वो हमको मिल रहा है। तो एट द मोमेंट द इंटीग्रेशन एंड जो हमारी एफर्ट्स हैं एकदम सीमलेस है। So the preparations are on a war footing ahead of Cyclone Biparjoy making landfall in Gujarat. We'll keep you updated with all of that is in store, as the cyclone will in fact be making landfall by Thursday. That's what we've been told. Afternoon Thursday is when that happens. With that, it's a wrap from my side here on Viewpoint. Thank you so much for watching. Up next is my colleague Shivani Gupta with Plain Speak.